Hello everyone, welcome back, and today we are going to discuss a very important topic, that is support vector mechanism, basically the geometry of classification. So you also know it as SVM. Okay, so support vector mechanism है क्या? तो आपको सबसे पहले ये समझने की जरूरत है, सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म एक ऐसी रोड है जो बहुत ज़्यादा चौड़ी है। ठीक है, और उसके दोनों छोर पे अलग अलग बिल्डिंग्स हैं। देखिए, जैसा कि आप इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि आप ये समझिए कि ये जो है हमारी ये ए टाइप की बिल्डिंग है और ये बी टाइप की बिल्डिंग है। ठीक है, तो इन दोनों को हमने सेपरेट किया है एक वाइड हमने इन दोनों को सेपरेट किया है एक वाइड रोड से। ठीक है, एक वाइड रोड से हमने इनको सेपरेट कर दिया। अब ये काम क्यों किया हमने और इसमें हमारी सहायता कौन कर रहा है, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। हमने ये वाइड रोड बनाई किस बेसिस पे, हमने इन चीज़ों को क्लासिफाई कैसे किया, उसके बारे में हम चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एसवीएम? So SVM tries to find the best possible boundary that separate classes. Okay, it is not just any line, it is the one that is there with the highest margin, like that maximizes the margin here. Okay, what is the goal here? So the goal is to create a widest gap between classes, or to have a widest like gap between two or multiple classes. And how it, like, what is the structure here? So it uses only important point, like the most important point, and those important points are called support vectors. So here in image you can see that we are having like enough margin, the wide margin which we are having here as this. Okay, and this is supported by, like you can see in here and here, like these are the vectors which are supporting our, like, the wide margin line. Okay, so basically these are the supporting member of that particular uh, line. Okay, so you can imagine it as a wide road. Okay, you can imagine it as a wide road which separate two classes. Like, let's say this is society A and this is society B. Okay, so here you can see society A and society B, and we want to create a widest possible line. Okay, so like how you are going to create a road in terms of society A, when you can see, like, you mark it as house number 1 and 2, and for the red society you are marking it as 1 and 2. So these are the starting point here. Okay, so these are the starting point here, and these act as the natural boundary for the whole society. Like, you can understand, like, this is the society A, this is society A and this is society B. By, like, by seeing what you will see that here you can see that there are two red houses here, and here you can see there are two blue houses here. So immediately you get to know, when you're looking at the like color of those houses, you immediately get to know, like, this is like society A and this is society B, because these are the vectors which are having the features of that particular class. So what we are doing here, we are taking those as reference, and we are just creating a line which never intrudes into society,
but covers the society. ओके, तो यू लाइक, अब यहाँ पे हम ऐसे ही बात कर सकते हैं कि देखिए, जब हम किसी मोहल्ले पे सड़क बनाते हैं, ठीक है ना, तो आप किसी के घर में सड़क नहीं डालते हैं, ठीक है। आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे अगर हम नीले और लाल घरों की बात करते हैं, ठीक है, तो हम अगर नीले और लाल घरों को देखें, तो जो नीला घर है वो हमको यही जताता है कि हाँ भाई, यहाँ से दूसरी सोसाइटी चालू हो रही है, और जो लाल घर है वो बता रहे हैं यहाँ से दूसरी सोसाइटी चालू हो रही है, ठीक है। ये हमारी दो डिफरेंट क्लासेस हो गई, ठीक है। तो इन दो डिफरेंट क्लासेस को हमने, इनके बीच में जितनी भी जगह खाली थी, हमने वहां पे अपनी सड़क बना दी कि जाओ भैया, तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब हमने अपना इनफाइनाइट रोड क्यों नहीं बनाया? इनफाइनाइट रोड इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पे दो, मतलब यहाँ पे घर हैं जिनके अंदर से हम अपनी सड़क नहीं निकाल सकते, कोई क्यों निकालने देगा सड़क, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि ये हो गया इसका, ये मान के चलिए कि हमारी ये सड़क का स्टॉपिंग पॉइंट हो गया इधर से, और यहाँ पे ये स्टॉपिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये जो चार स्टॉपिंग पॉइंट्स हैं इसके, वो ये दर्शाते हैं कि अब यहाँ से आगे आप नहीं बढ़ सकते, तो हमको एक सफिशिएंट एक स्पेस मिल गया। अब हमेशा याद रखिए कि हमारी जो बेस्ट पॉसिबल लाइन है, ठीक है, हमारी जो बेस्ट पॉसिबल लाइन है, हमारी जो बेस्ट पॉसिबल लाइन है वो इस टोटल जो हमारे पास जो ये पूरा का पूरा हाईवे है या रोड है, उसके सेंटर से गुजरेगी, ठीक है। तो यहाँ से दोनों क्लासेस के बीच की दूरी इसकी क्या हो गई? इक्वल हो गई। क्यों? क्योंकि हमने जितनी चौड़ी रोड बनाई थी, ठीक है, उसके सेंटर से निकाल रहे, हमने रोड का रेफरेंस क्या लिया था कि अगर इधर से कोई नीला घर शुरू हो रहा है, इधर से लाल हो रहा है, तो सिर्फ इसके बीच में रोड बनानी है, ठीक है। तो ये कुछ वो इसी प्रकार से काम करता है। तो जो हम नीला और लाल घर का रेफरेंस लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सारे के सारे घर को नहीं लिया, यहाँ पे हमने उन घर को लिया जहां से हमको ये इंडिकेट हो रहा है कि ये मोहल्ला शुरू हो रहा है, ये सोसाइटी शुरू हो रही है। तो यही जो घर हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? सपोर्टिंग वेक्टर। Why SVM is different? So SVM is different because other model try to fit data, okay, and SVM tries to separate data with maximum confidence. What is the key idea here? A good boundary is the one farthest from any data point, like that is more robust. तो आप यहाँ पे आप ये देखिए कि जो अदर हमारे मॉडल हैं वो क्या करते हैं, एक बेस्ट फिट लाइन निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे रिग्रेशन में, ठीक है। यहाँ पे वो एक बेस्ट फिट लाइन निकालने की कोशिश करते हैं, और जो हमारा एसवीएम है वो क्या करता है, वो ऐसी लाइन बनाना चाहता है जिससे हम जो क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से सेपरेट कर सकें, ठीक है। और हमारा जो इसमें कॉन्फिडेंस हो वो सबसे ज़्यादा हो कि हाँ, हमने जो किया है वो सही ही है, ठीक है। अब एक अच्छी बाउंड्री क्या होती है? एक अच्छी बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जो किसी भी डेटा से दूर हो, ठीक है, किसी भी डेटा पॉइंट से दूर हो, ठीक है। क्यों? अब ये क्यों बेहतर बनती है? क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रोबस्ट होती है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला किसी भी डेटा पॉइंट से दूर हो? अब यहाँ पे आप ये देखिए कि अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पे हमारी एक सोसाइटी, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन मान चल रहे हैं, यहाँ पे ब्लू सोसाइटी है, ठीक है, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आप देखिए कि ये जो हमारी सेंटर लाइन चल रही है यहाँ पे, दिस वन, ओके, ये हमारी उतनी ही दूर है ब्लू से जितनी ही दूर हमारी रेड से। तो हमको क्या है, इसमें कभी भी मिक्स होने का चांस नहीं रहेगा, हमारा कंफ्यूजन कभी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, द मार्जिन, the margin is the distance between the boundaries and nearest point from each classes, okay. Larger the margin, better we are going to predict something, and when we are having a good generalization, then we are tend to make lesser mistakes, okay। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इसका कहने का सीधा सा तात्पर्य यही है कि जितना ज़्यादा मार्जिन होगा, ठीक है, उतना ही बेटर हमारे प्रिडिक्शन के लिए होगा। क्यों?
क्योंकि हमारे पास मार्जिन ज़्यादा है, हमारे पास डेटा पॉइंट्स कम आएंगे। ठीक है, हमको सारे डेटा पॉइंट्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमको सिर्फ कुछ डेटा पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, जो हमारे इस पर्टिकुलर मॉडल को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 2 डेटा पॉइंट से ये सपोर्टेड है हमारा पूरा का पूरा लाइन, और यहाँ पे जो है हमारा मार्जिन वो ये है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा मार्जिन उतना ही बेहतर हमारा प्रिडिक्शन, और जितना ही हम इस चीज़ों को जनरलाइज कर लेंगे उतना ही कम हम मिस्टेक करेंगे। What are the support vectors? Okay, so let's go ahead and see. Only a few data point matter. Point that lie closest to the boundary. Those are called support vectors. And if you remove all points, SVM still produces the same boundary. तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि देखिए यहाँ पे सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स होते हैं, जैसे ये हो गया, 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 ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बनाया है सपोर्ट वेक्टर। ये बने हैं हमारे सपोर्ट वेक्टर। ठीक है, तो अगर ये हमारे सपोर्ट वेक्टर बन गए, मतलब ये मान के चलिए कि हमारा ये स्ट्रक्चर बना दिया इन्होंने। ठीक है, अब इसके अलावा जो अननेसेसरी डेटा पॉइंट्स है, जैसे यहाँ पे कुछ हो गए, ठीक है, और यहाँ पे कुछ हो गए। ठीक है, अब हमारे सपोर्ट वेक्टर से ये चीज़ ऑलरेडी सपोर्टेड है। सपोर्ट वेक्टर, सीधी सी बात है, अब आपको ये समझना होगा सपोर्ट वेक्टर क्यों बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है, उस एल्गोरिदम को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर उसके अलावा यहाँ पे कोई पॉइंट्स हो नहीं हो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो उन्होंने इन पे डिपेंडेंसी हमारी कर दी खत्म। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप सारे पॉइंट्स हटा भी देते हो, जैसे ये बहुत सारे पॉइंट्स थे यहाँ पे पहले। ठीक है, आपने एसवीएम के थ्रू एक मार्जिन वाली रोड बना ली। अब आपने डिफाइन कर दिया कि भाई इसके उस पर सर्टेन क्लास है, इसके इस पर सर्टेन क्लास है। तो अब उन क्लासेस को हटा भी दोगे ना, तो भी हमारे लिए वो डिफाइंड है, प्रिटी मच डिफाइंड है कि हाँ, इसके पार जाएंगे तो हमको कुछ और क्लास मिलेगी, और इसके पार आएंगे तो हमको कुछ और क्लास मिलेगी। What if the data is non-linearly separable? Okay, then what happens? SVM introduces soft margin. Okay, some misclassifications are allowed in this, and balance between margins width and error. It is controlled by parameters C. Higher the C, strict margin; lower the C, flexible margin. तो आप इसको कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारा C जो है वो क्या है, हमारा मार्जिन का पैरामीटर है। ठीक है, अब ये यहाँ पे और यहाँ पे आप देखिए, अगर ये इस दिशा में बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। ठीक है, और इस दिशा में बढ़ रहा है, सॉफ्ट होता जा रहा है। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुसाएंगे या क्लॉकवाइज इस नॉब को घुमाएंगे, जैसे हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो हमारा जो मार्जिन है वो स्ट्रिक्ट होता गया। ठीक है, कि भैया अगर कोई सिंगल भी गलती मिलेगी तो बहुत ज़्यादा पेनाल्टी में लगेगी तुमको। ठीक है, लेकिन अगर हमने सॉफ्ट कर दिया तो बोला कि यार एक दो मिस्टेक तो चलती हैं। ठीक है, तो छोटे मोटे मिस्टेक्स पे उतना वो ध्यान नहीं देता। अच्छा, एसवीएम सॉफ्ट मार्जिन क्यों लाता है। ठीक है, देखिए एसवीएम सॉफ्ट मार्जिन सिर्फ इसलिए लाता है कि हमको सबसे बेहतर क्लासिफिकेशन मिल सके। इससे क्या, इसमें वो क्या करता है, इसमें वो करता ये है कि कुछ मिस क्लासिफिकेशन को वो अलाउ कर देता है कि भाई चलो ठीक है, तुमने घर रोड के इस पार से लेके इस पार बना दिया, कोई बात नहीं। लाल वाला भी एक इस मोहल्ले में रह रहा है, हालांकि वो फिट नहीं है उसमें, बट तब भी कह रहा है कि चलो ठीक है, तुम्हारा घर नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो इससे क्या करता है वो, इससे वो ये करता है कि जो मार्जिन विड्थ और एरर है उनके बीच में एक बैलेंस बिठाता है। ठीक है, और ये सारा का सारा बैलेंस एक पैरामीटर है जो कि कहलाता है हमारा सी। इससे होता है हमारा कंट्रोल। ठीक है, जितना ही ज्यादा सी, जितना ही ज्यादा सी उतना ही ज्यादा लाइक हमारा स्ट्रिक्ट मार्जिन होगा। मतलब फिर आप कुछ इस प्रकार से समझो कि हमारा सी अगर है, ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार से करेगा कि भैया यहाँ पे सिर्फ आप येलो येलो ही रहोगे, और इधर कोई और भी कलर ले लो, वो रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा कम है सी, अगर हमारा सी यहाँ पे अगर हमारा कम है, तो वो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि चलो इक्का दुक्का गलतियां हम
मान लेते हैं कि हो जाती हैं, ठीक है। द कर्नल ट्रिक, ओके। तो सम डेटा कैन नॉट बी सेपरेटेड विथ स्ट्रेट लाइन. SVM uses kernel to map data into higher dimensions where separations become possible, and there's no need to compute mapping explicitly, and that becomes mathematically efficient. So how does it work? यहाँ पे वो काम कैसे कर रहा है, ठीक है। जैसे when you are seeing this thing as a 2D, तो यहाँ पे आप मान के चलो कि मैंने कुछ डिज़ाइन बनाया यूं कि यहाँ पे मैंने कलर का चॉइस खराब रख दिया, पर एनीवेज, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाना हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया, ठीक है। क्यों? हमने इसको 2D में रखा है। लेकिन SVM क्या कर रहा है? SVM यहाँ पे हायर डायमेंशन ला रहा है। SVM ने क्या किया? इसको 3D में कर दिया, और इसको कर कुछ ऐसा दिया, देखो, इसको कुछ इस प्रकार से कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। अब इसने क्या किया कि जो हमारे येलो येलो थे उसको एक अलग प्लेन में रख दिया, जो हमारे ब्लू थे या रेड थे उसको एक अलग प्लेन में रख दिया, और उसके बीच में एक तीसरा प्लेन इंट्रोड्यूस किया, ये। और यही प्लेन है हमारा वो मार्जिन। अब हमने 2D को जैसे ही 3D में प्लॉट किया तो हमारे लिए इंटरप्रिटेशन करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है। और ये मैथमेटिकली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, इसलिए हम कर्नल ट्रिक का यूज़ करते हैं, क्योंकि कर्नल ट्रिक हमको अलाउ करती है कि हम मतलब लोअर डायमेंशन की चीज़ों को हायर डायमेंशन में डाल के और उनके बीच में सेपरेशन क्रिएट कर सके, जिससे हमको उसके बीच में एक मार्जिन क्रिएट करने का मौका मिल जाए। व्हाट आर द कॉमन कर्नल्स हियर? तो देखो यहाँ पे कुछ आप कॉमन कर्नल्स देख सकते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा लीनियर कर्नल, ओके, दिस इज फास्ट एंड फॉर हाई डायमेंशनल डेटा। Polynomial kernel, this is curve boundaries, and RBF kernel, that is flexible and captures complex shape. तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे अब देख पा रहे होगे, यहाँ पे हमारा लीनियर बाउंड्री बना रहा है, वो क्या बना रहा है? लीनियर कर्नल, कर्नल बना रहा है, ठीक है। ये फास्ट है और हाई डायमेंशनल डेटा के लिए बहुत सही है, ठीक है। पॉलिनोमियल कर्नल ये कर्व बाउंड्री बना रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होगे। और जो हमारा RBF कर्नल है वो फ्लेक्सिबल बाउंड्री बनाता है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप को ये कैप्चर कर पाता है, ठीक है। अब SVM हमारा सबसे बेहतरीन तरीके से काम कब करता है? So SVM works well when high dimensional data set are there, clear margin exists, moderate data size, text classification, bioinformatics, and problem with complex boundary, which can be solved with RBF kernel. Okay, तो हमारा जो SVM है वो तब बेहतर काम करेगा जब हमारे पास हाई डायमेंशनल डेटा हो, ठीक है, क्लियर मार्जिन वहाँ पे हम एग्जिस्ट कर सकें, ठीक है, मॉडरेट डेटा साइज हो, डेटा साइज बहुत बड़ा नहीं हो, मॉडरेट साइज का हो, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो, और प्रॉब्लम विथ कॉम्प्लेक्स बाउंड्री, जिसको हम RBF कर्नल की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा SVM स्ट्रगल कहाँ करता है? देखो, हमारा SVM स्ट्रगल तब करता है जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा सेट हो, ठीक है। यहाँ पे इसका ट्रेनिंग जो है वो हो जाता है स्लो। So when we are having large data set, the SVM's training becomes very slow, very noisy data. जब हमारे डेटा में ही बहुत ज़्यादा नॉइज हो तो ये स्ट्रगल करता है। ओवरलैपिंग क्लासेस, अब देखो, एक दो मिस्टेक्स तो तब भी मैनेजेबल है। अगर सारे के सारे जम्बल्ड हैं, जैसे कुछ ही समझो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12, अब यहाँ पे आप देखो कि हमारी सारी क्लासेस ओवरलैप हो रही हैं, तो हमको यहाँ पे सेपरेट करना बड़ा कठिन होगा, ठीक है। यहाँ पे वो स्ट्रगल करता है।
मैनी इररेलेवेंट फीचर्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनका हमको प्रिडिक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बट वो तब भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वहां पे भी स्ट्रगल करेगा। एंड व्हेन डेटा सेट रिक्वायर प्रोबेबिलिटीज, ओके, जहाँ पे हमको प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत होती है वहाँ पे भी एसवीएम जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन में बहुत अच्छा है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, स्पैम एंड नॉट स्पैम, इसमें बहुत बढ़िया है। लेकिन आज बारिश होगी, कितने परसेंट चांस है बारिश होने के, अगर हम ऐसी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे तो वहाँ पे हमारा एसवीएम क्या करेगा, स्ट्रगल करने लगेगा। जियोमेट्रिक व्यू देखो, SVM solves how do we maximize the gap between two classes. You can think of it as pushing the boundary away from the closest point until it can't move anymore. तो देखो, हमारा SVM है, उसको ज्योमेट्रिकली हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन करते हैं कि हम अपनी बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी बाउंड्रीज हो गई, ठीक है, हम इनको पुश कर रहे हैं तब तक जब तक अब इसके आगे जाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया था ज्योमेट्रिक व्यू। अब हम जानते हैं कि वाई मार्जिन मैटर्स, तो मार्जिन जरूरी क्यों है। ठीक है, सो लार्ज मार्जिन मीन्स मॉडल इज लेस सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस। ओके, इट इज बेटर फॉर जनरलाइजेशन, it requires only fewer support vectors, that means faster predictions and robust against noise। तो यहाँ पे आप ये समझो कि हमारा जो लार्ज मार्जिन जहाँ पे भी होगा, ठीक है, वहाँ पे जो छोटे मोटे जो चेंज होते हैं, छोटे मोटे आउटलायर्स आते हैं, तो उससे हमारे मॉडल को उतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक जनरलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये हमारे पास जब बहुत कम सपोर्ट वेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको माने, ये पूरे पूरे डेटा का सपोर्ट वेक्टर माने, तो हो सकता है इसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो। लेकिन हमारे पास अगर इक्का दुक्का ही सपोर्ट वेक्टर, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो वहां पे हमारा क्या होगा, प्रिडिक्शन फास्टर होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इसके पास क्लास दूसरी है। ठीक है, तो हमको सिर्फ इनके फीचर्स याद रखने हैं और इसके बाद जो कुछ भी होगा वो यही है। ठीक है, मिलता जुलता मिलेगा तो हम इसको वही मान के चलेंगे, वही क्लास मान के चलेंगे। अब ये नॉइस के अगेंस्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, छोटी मोटी नॉइज आने पे उसको खास फर्क पड़ता नहीं है। अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है हमारा, SVM is used for handwritten digital recognition। जैसे आप ये मान के चलो कि कहीं भी आपने एक आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, या फिर आपका चेक है, उस पे आप क्या करते हो, उस पे आपने जब डिजिट्स लिखे तो हमारा कंप्यूटर में जब वो स्कैन हो जाता है तो उसको कैसे पता चलता है कि आपने यही चीज़ लिखी है। वहाँ पे हमारा सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म काम करता है। ईमेल स्पैम डिटेक्शन, वो उसका एग्जांपल हमने पहले ही दे दिया। आपका फेस रिकॉग्निशन आपके स्मार्टफोन या फिर आपके विंडोज़ का जो हेलो सिक्योरिटी आता है, वो डीएनए सीक्वेंस क्लासिफिकेशन, डीएनए सीक्वेंस का क्लासिफिकेशन करना हुआ वहाँ पे। मेडिकल डायग्नोसिस विद स्मॉल डेटा सेट, जब हमारे पास थोड़े ही डेटा सेट हो लेकिन हमको मेडिकल डायग्नोसिस करनी हो, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से काम आता है हमारा सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म। अब सपोर्ट वेक्टर मैकेनिज्म और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में डिफरेंस क्या है? ठीक है, देखिए, हमारा जो SVM है, ठीक है, वो क्या है, हमारा ज्योमेट्रिक मॉडल है। ये मार्जिन को मैक्सिमाइज करता है, सेंसिटिव टू सी एंड कर्नल, एंड इट वर्क्स वेल इन हाई डायमेंशन। Logistic regression is probabilistic model. It maximizes likelihood. It is sensitive to learning rate and works well with many example। तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि जो हमारा SVM है वो सबसे पहला तो जियोमेट्रिक मॉडल है। ठीक है, ये हमेशा मार्जिन को मैक्सिमाइज करता है। ठीक है ना, ये कर्नल और हमारे जो सी जिसकी हमने बात की थी उससे बड़ा ही ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और हाई डायमेंशनल, हाई डायमेंशनल डेटा के लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है, वो प्रोबेबिलिटी में बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है,
ये समानता ढूंढता है। ठीक है, ये मैक्सिमम समानता लेके आता है। ठीक है, ये लर्निंग रेट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि लर्निंग रेट अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो इशू, बहुत कम हुआ तो इशू। तो ये बड़ा सेंसिटिव होता है उसको लेके। और ये बहुत सारे एग्जाम्पल जब इसके पास हो ना, तो इसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो हमारा एसवीएम और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बीच का डिफरेंस ये रहा। और इसी के साथ आज का हमारा सेशन होता है ख़त्म। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।